So welcome my dear students of class 7. This is the chapter explanation for chapter 3 from the book of NCERT. Okay, new version Purvi. Fine. I hope last two chapters were piece of cake for you when I have given you all the basic explanation along with all the related grammar knowledge. Fine. So now here we are going to start with the third chapter, 3 days to see. Already the previous two chapters were very motivating, right? First chapter was about a girl Janvi. She wanted to study and finally she succeeded, right? She got success in her plan. The second chapter was about a King Bruce of Scotland who was depressed and down, but finally he succeeded through an inspiration of a spider. Now, this is the third chapter, and I expect that you all have written all the given word meanings to grow your vocabulary and the required grammar details that I have given you, everything you have noted while going through the chapter. The same thing you have to do here itself. Fine. As I always tell, the integration platform is not only to learn the chapter or not only to learn the concept, but integration is for overall development. Understand, we cannot study any subject as a subject. We have to follow a holistic approach to learn anything. Fine. So the same thing we will be going to follow here. The chapter name is 3 days to see. Okay, but there are some activities told you have been told to do before you start the reading of the chapter. What you have to do, you have to work in pairs. Okay, you have to visit a place that you liked with your friends, or if you have ever been, you have to recall those memories and you have to discuss it with in detail with the discuss in detail about the place, and you have to write the following. Okay, नेम ऑफ द प्लेस आपको क्या लिखना है, आपको याद करना है कि आप पहले कहाँ गए थे, जो जगह आपको पसंद है. फाइन. और आपको फिर क्या करना है, आपको उस जगह का नाम लिखना है, आप जिनके साथ गए थे, द पर्सन यू वेंट विद, एंड थर्ड द थिंग दैट यू कुड. ठीक है, जो चीज़ों को आप देख सकते थे, सुन सकते थे, स्मेल कर सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, टच एंड फील कर सकते थे, ये सारी चीज़ों को आपको रिकलेक्ट करना है, रिकॉल करना है. रिकॉल मतलब कि याद करना है. ओके, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील. ये मेमोरी आप जब याद करते हैं, ये या पुरानी बातों को जो आप अपने फेवरेट प्लेस पे गए थे, इन सब चीज़ों को जब आप याद करते हैं तो आपको कैसा लगता है. फाइन. डू थिंक योर विजिट और एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर. तो आपको ये सोचना है, आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते तो आपके लिए जो विजिट है ये कुछ अलग प्रकार का होता. ठीक है, आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ में ये आंसर को डिस्कस करना है. फाइन. Did you know that our five senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? ठीक है, हम सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उन 5 सेंस ऑर्गन से हम 5 तरीके की चीज़ों को सेंस कर सकते हैं. यस, एंड इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ, है ना. फर्स्ट इज आई, वी सी विथ अवर आईज. सेकेंड इज ईयर, वी हियर विथ अवर ईयर्स. थर्ड इज नोज, वी स्मेल विथ अवर नोज. ओके. फिफ्थ इज टंग, we taste with our tongue, है ना. and last is our skin, we feel with our skin. fine, I hope everybody knows that. ठीक है, but क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से अगर कोई एक भी फेल हो जाए तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है. got it. so the chapter says about the same thing. we have to learn about a girl who want to see if she get 3 days. ठीक है, what she would see. तो यहाँ पर हम चैप्टर शुरू करते हैं. लेट अस रीड. आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच. मियर का मतलब जस्ट होता है ना, सिर्फ बोलने के लिए हम इंग्लिश में मियर का यूज करते हैं. मीनिंग ऑफ मियर इज जस्ट. ओके, सो मैं, द राइटर इज सेइंग, मैं जो देख नहीं सकती हूँ, हु कैन नॉट सी. मैं हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्ट की लगती है. ठीक है,
इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच, जब मैं उन चीज़ों को छूती हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं सिर्फ टच करती हूँ और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें समझ में आती है. ओके, लाइक वॉट शी सेज, आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ. डेलिकेट का मतलब होता है क्या? सॉफ्ट, या फिर वेरी, हिंदी में बोलते हैं बहुत नाजुक. ठीक है, तो डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट. तो शी सेज दैट इवन आई कैंट सी बट आई कैन फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ. सिमेट्री का मतलब क्या होता है? उसकी जो बनावट है ना, उसको वो फील कर सकती है. फाइन. आई पास माई हैंड्स लविंग अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च. ठीक है, देखो बर्च इज अ काइंड ऑफ प्लांट, इट इज अ काइंड ऑफ ट्री. ठीक है, ऐसे लंबी लंबी उसके ट्रंक होते हैं और फिर बहुत ऊंचा पेड़ होता है. ठीक है, उसकी जो उसका जो आउटर लेयर होता है ना, इट इज वेरी स्मूथ. ओके, सो हियर व्हाट शी सेज कि आई पास माई हैंड्स लविंग अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च. स्मूथ स्किन जो होती है सिल्वर बर्च की, उसमें वो अपने हाथ को पास करती है और उसको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्मूथ सा है. ओके, और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन. शैगी का मतलब होता है हेरी. ठीक है, पूरे बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे प्लांट जिसके जो ब्रांच होते हैं और जिसका जो ट्रंक होता है वो पूरा हेरी होता है. ओके, सो उसी में से एक है पाइन. पाइन का जो बार्क होता है वो बहुत हेरी होता है. ओके, सो शी सेज कि आई कैन इवन फील द रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन. बार्क मतलब के ट्रंक के ऊपर का जो आउटर लेयर होता है वो. ठीक है, in spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bird. ठीक है, what she says कि I touch the branches of trees. trees की branches को छूती है hopefully. ठीक है, इस उम्मीद से कि उसको कोई फूल की कली मिलेगी. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. ठीक है, देखो हमको पता है ना कि स्प्रिंग सीजन कब आता है? विंटर के बाद आता है. और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं, है ना, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. तो और वेदर जो होता है बहुत प्लेजेंट होता है. ओके, सो व्हाट शी इज सेइंग कि मैं बर्ड्स को छूकर ये पता करना चाहती हूँ कि क्या स्प्रिंग सीजन का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका है. ठीक है, विंटर के बाद में जब नेचर अवेकनिंग हो रही है, यानी नेचर जब जाग रही है अपने स्प्रिंग को सीजन को लेकर, तो ये चीज को मैं फील कर सकती हूँ फ्लावर के बड को छूकर, यानी कि फ्लावर की कली को छूकर. ऑकेशनली यानी कभी कभी. आई एम फॉर्चुनेट, क्या बोल रही है कि मैं लकी हूँ. कभी कभी तो मैं लकी हूँ कि मैं अपने हाथ जेंटली कहाँ प्लेस करती हूँ? छोटे से ट्री में, और मैं फील करती हूँ क्विवर ऑफ बर्ड ऑफ इन फुल सॉन्ग. ठीक है, क्विवर का मतलब होता है थरथराहट. फाइन. सो क्या बोल रही कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ जो मैं अपने हाथ को पेड़ पौधों पे रखती हूँ और कई बार मैं बर्ड्स के शिवरिंग सॉन्ग को फील कर सकती हूँ. ठीक है, उनके साउंड को मैं फील कर सकती हूँ. एट टाइम्स यानी कभी कभी. ठीक, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. पर क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, उसका हार्ट जो है वो क्राई करता है, वो मन से बहुत दुखी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीजों को देखना चाहती है. इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट. तो बोल रही है कि अगर कोई चीज मुझे छूने से इतनी ज्यादा अच्छी लग रही, सिर्फ छूने से, मियर का मैंने मीनिंग बताया था ना, मियर का मतलब होता है सिर्फ. तो अगर कोई चीज मुझे सिर्फ छूने से इतनी अच्छी लग रही है, तो फिर वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी अगर मैं उन्हें उन चीजों को देख सकूं. राइट. जो लोग मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने सेंस, अदर सेंस ऑर्गन से ही सारी चीजों को सेंस करके समझते हैं. Understand? So it is very difficult for a person who is blind by birth and he is surviving on the earth. But yes, we have seen many lot of talented person who are blind by birth, right? But as God has gifted us with all the senses, we must respect it, right? What she saying, कई बार मेरा मन बहुत रोता है कि मैं ये सारी चीजों को देख नहीं पाती हूँ. अगर मुझे देखने से, छूने से इतना अच्छा लगेगा, कोई चीज लग रही है, तो वो देखने में कितनी ज्यादा अच्छी होगी. And I have imagined what I should do, what I should most like to see if I were given to use my eyes for say for just 3 days.
ठीक है, क्या बोल रही है, और मैंने ये सारी चीजें इमेजिन भी कर ली है कि अगर मुझे 3 दिन देखने के लिए मिलता है, सिर्फ 3 दिनों के लिए देखने के लिए मिलता है, अगर बोला जाए कि 3 दिनों के लिए आपको देखने मिलेगा, तो मैं क्या क्या देखूंगी ये भी मैंने इमेजिन करके रख लिया है. ओके, सो व्हाट्स नाउ शी स्टार्ट्स टू रिवील अबाउट हर इमेजिनेशन. ओके, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स. तो क्या बोल रही है, उन 3 दिन को, है ना, उन 3 दिन को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी. ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माय लाइफ वर्थ लिविंग. वर्थ का मतलब होता है कि क्या बोलना चाहिए कि वसूल हो गया, है ना. ठीक है, तो व्हाट शी इज सेइंग कि जिन्होंने मेरी लाइफ को वर्दी बनाई है ना, वो उन लोगों को मैं देखना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो होते हैं. फर्स्ट डे में मैं किनको देखूंगी, मैं उन लोगों को देखूंगी जो बहुत मेरे लिए काइंड है, और उनकी कंपेनियनशिप यानी कि उनका साथ, उनकी दोस्ती जो है, उसने मेरी लाइफ को जीने के लायक या जीने के काबिल बनाया है. ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी वॉन्ट इट दिस आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through the window of soul, the eye. ठीक है, तो क्या बोल रही है कि मुझे ना ये चीज बस नहीं पता है कि विंडो ऑफ द सोल, है ना, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि जो आईज होती है हमारी, वो हमारी आत्मा का दरवाजा होती है. ठीक है, हम कई बार सामने वाले की आंखों से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मच काइंड एंड हाउ मच कंपैशनेट दैट पर्सन इज टू अस, है ना, वो हमारे लिए क्या धारणा रखता है अपने मन में, ये हमको समझ में आ सकता है. सो दैट शी इज सेइंग कि मुझे लोगों को अच्छा साथ तो मिला है, लेकिन मैं उस चीज़ को मिस करती हूँ. मुझे वो चीज़ नहीं पता है कि हम विंडो के सोल से, यानी कि आंखों से, एक फ्रेंड को कैसे देख सकते हैं. ठीक है, आई डू नॉट नो वॉट इट इज टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. एक दोस्त के दिल में क्या है ना, थ्रू दैट window of the soul, the eye. Okay, I can only see through my fingertips the outline of the face. तो क्या बोल रही, मैं अपने दोस्तों को कैसे पहचानती हूँ, सिर्फ अपने फिंगर टिप से. मैंने जो उनके फेस का आउटलाइन जो अपने माइंड में बनाया है, मैं उनके फेस को टच करके ही मैं पता कर पाती हूँ कि मेरा दोस्त ये मेरा दोस्त है या कोई और है. आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस. ठीक है, वो डिटेक्ट कर पाती है अपने सेंस से, है ना, जब कोई हंसता है या जब कोई दुखी होता है, या फिर उनके जो भी इमोशंस होते हैं वो उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से वो सेंस कर पाती है. ठीक है, आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. मैं अपने दोस्तों को उनके फेस के फील से ही बस जानती हूँ. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट डे आई शुड, अब वो फर्स्ट डे हो गया, वो फर्स्ट डे अपने फ्रेंड्स को देखना चाहती है जो उसकी लाइफ को बहुत ईजी बना के चल रहे हैं. द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिराकल बाई विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे. दूसरे दिन वो क्या देखना चाहती है, वो देखना चाहती है डॉन. डॉन का मतलब होता है सुबह का जो एकदम सनराइज का समय होता है ना, सुबह 4-5 बजे का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं डॉन. ओके, सो शी वांट टू सी दैट अर्ली मॉर्निंग सिनेरियो एंड शी वांट टू सी द थ्रिलिंग मिराकल, यानी कि वो एकदम एक एक्साइटिंग मिराकल, जो चमत्कार होता है ना, क्या चमत्कार की रात जो है वो दिन में कैसे बदलती है, वो मैं देखना चाहूंगी दूसरे दिन. ठीक है, आई शुड बी होल्ड विद द ऑ the with awe the magnificent panorama of light. ठीक है, क्या बोल रही है कि मैं क्या देखना चाहूंगी. behold का मतलब होता है देखना, है ना, behold का मतलब होता है देखना. तो आई शुड behold, मैं देखूंगी क्या, विथ ऑ, यानी कि एकदम वंडरफुल और सरप्राइजिंग वे में. जैसे हम कोई वंडरफुल चीज देखकर एकदम सरप्राइज होते हैं ना, और ऑ करके बोलते हैं, तो दैट शी इज सेइंग कि ऑ मतलब कि ओवरवेलमिंग विथ वंडर. ठीक है, आप उसको देखकर बहुत ज्यादा वंडर भी हो रहे हैं और बहुत आपको पसंद भी आ रहा है. तो क्या बोल रही है कि मैं देखूंगी इसको, एक वंडरफुल मैग्निफिशेंट सीन को, पैनोरामा यानी कि सीन. ठीक है, पैनोरामा ऑफ लाइट विथ विच द सन अवेकेंस द स्लीपिंग अर्थ. तो मैं जो, जब सनलाइट धरती पे पड़ती है, ठीक है, और सनलाइट सन अपने लाइट से, अपने राइजिंग से धरती को जो जगाता है, वो सीन मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा होता है. ओके, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो मैं जो बहुत बिजी जो वर्ल्ड चल रहा है ना, उसको मैं आज के दिन
देखना चाहती हूँ। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना। तो शी इज सेइंग कि ये जो सेकेंड डे मुझे मिलेगा, फिर उसके बाद में उसको समर्पित करना चाहूंगी मैं वर्ल्ड के हैस्टी ग्लिम्स को देखने में। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है। हियर व्हाट इज गिवन, ग्लिम्स मतलब ब्रीफ लुक, है ना, एक झलक में मैं सारी चीजों को देखना चाहती हूँ, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब पूरी दुनिया ना, पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और अभी कैसी है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। तो क्या बोल रही मैं, इंसान के प्रोग्रेस का जो नमूना है ना, या फिर जो उसका जो एक पूरा डिस्प्ले है, ठीक है, उसको मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे कैसे इंसान ने प्रोग्रेस किया है ना, पुराने समय से अभी तक के कैसे कैसे इंसान ने प्रोग्रेस किया है, उसका नमूना या उसका मैं डिस्प्ले देखना चाहती हूँ। तो और उस वजह से उसके लिए मैं क्या कहा, म्यूजियम जाना चाहती हूँ। देर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो बोल रही कि वहां पर जो है मेरी जो आईज है वो ब्रीफ हिस्ट्री देखेगी अर्थ की, ठीक है। ब्रीफ मतलब एकदम डिटेल में, है ना, एक डिटेल हिस्ट्री देखेगी अर्थ की, एनिमल्स की, और कैसे रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन द नेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, कैसे कैसे मतलब इंसानों का डेवलपमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें वो, है ना, उनके अपने अपने नेटिव एनवायरनमेंट में, अपने अपने उनके एनवायरनमेंट में कैसे उनका जो इवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ों को वो देखना चाहती है। क्या देखना चाहती है, जाइजेंटिक कार्केसेस ऑफ डायनासोर, ठीक है, कैरकस ऑफ डायनासोर। कैरकस का मतलब होता है कॉर्प्स या हड्डी का ढांचा, उसका स्केलेटन या फिर उसकी डेड बॉडी। तो जाइजेंटिक मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, वेरी बिग को बोलते हैं जाइजेंटिक। आई होप यू ऑल आर holding pencil and copy and book, and you are writing down the words that I am telling. Okay, so gigantic का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा, और carcass का मतलब होता है कॉर्प्स या फिर डेड बॉडी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायनासोर का, डायनासोरस एंड मैस्टोडोन्स दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर, ठीक है। मैस्टोडोन्स होते हैं ना ऐसे हाथी जो जिनके एकदम बहुत सारे बाल थे, और ऐसे एकदम बड़े बड़े उसके दांत रहते हैं, ठीक है, एकदम फाइन। मामत आपने सुना होगा, एक बहुत मतलब बाल वाला एक हाथी है ना, उसके उससे वो थोड़ा सा मैस्टोडोन्स जो है वो अलग रहता है। मैस्टोडोन्स आर क्वाइट बिगर देन मैमथ्स, ठीक है। मैस्टोडोन्स को देखना चाहती हूँ जो अर्थ में घूमते थे, जो इंसान के भी आने के पहले वो घूमते थे अर्थ में, विथ हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, ठीक है। तो अपने क्या बोलना चाहिए कि स्टैचर मतलब क्या है यहाँ पर, कि उसका जो फिजिक है ना, उसकी जो बॉडी है, ठीक है, तो अपनी पावरफुल बॉडी और ब्रेन के साथ में जो एनिमल किंगडम को उसने जो कॉन्कर करके रखा था, है ना, यानी कि वहां पर उसने एक अपना दबदबा बनाकर रखा था, अपनी जीत बनाकर रखी थी, उस मैस्टोडोन को मैं देखना चाहती हूँ। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करना चाहती हूँ, आने वाली सुबह के पहले, ठीक है, द फॉलोइंग मॉर्निंग यानी आने वाली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं फिर से अगली सुबह मैं फिर से उस सुबह के नज़ारे को ग्रीटिंग्स करना चाहती हूँ, और एंशियस यानी कि बहुत उतावली रहूंगी, उतावली मतलब उतावली होते हुए मैं मॉर्निंग को ग्रीट करूं, और उसके बाद मैं नई चीज़ों को डिस्कवर करूं, है ना, नई खुशियों को डिस्कवर करूं, नई चीज़ों को रिवील करूं। न्यू रेवलेशंस मीन्स रिवील करना मतलब होता है बताना, ठीक है। तो नई चीज़ों को वो मतलब डिस्कवर करे, ओके। रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की और जो चीज़ें हैं उसको वो डिस्कवर कर सके, ठीक है। टुडे दिस थर्ड डे, फिर अब ये आज का थर्ड डे हो जाएगा। फर्स्ट डे उसने क्या देखा, अपने सारे कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स को शी वांटेड टू सी। दूसरे दिन वो क्या देखना चाहती थी कि सुबह कैसे हो रही है ना, और जो रात है वो कैसे दिन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। दूसरी चीज़ वो देखना चाहती थी वर्ल्ड का हैस्टी ग्लिम्स, ठीक है। उसके बाद में द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आंसर राइटिंग में काम आएगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने एंड यू अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर वो देखना चाहती थी कि कैसे जो है जानवर है ना, डायनासोर्स के कैरकस देखना चाहती थी, मैस्टोडन्स को देखना चाहती थी, ठीक है।
और ठीक है, तो ये सारी चीजें वो देखना चाहती थी सेकेंड डे में. नाउ ऑन द थर्ड डे शी वॉन्ट टू सी वॉट आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन. हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे थर्ड डे वो फिर से ये सारी चीजें देखना चाहती थी. ठीक है, कि वो फिर से सुबह को ग्रीट करे और नई खुशी के साथ में नई चीजों को देखें. टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड. ठीक है, अब वर्क डे वर्ल्ड मतलब कि क्या, एक वो काम काजी वाली दुनिया को वो देखना चाहती है कि कैसे लोग दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं और कैसे उनका जो जीवन है वो चलता है, उनका जो दिनचर्या है वो चलता है. ठीक है, आई मेड द हॉर्न्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ. ठीक है, तो मतलब जीवन उनका कैसा चल रहा है, बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो रहा है कि उनका जो जीवन है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजों को मैं देखना चाहती हूँ. ठीक है, और आई शेल स्पेंड द वर्क डे वर्ल्ड एमिड, यानी एमिड का मतलब होता है बीच में. एमिड इज अ प्रपोजिशन, द मीनिंग ऑफ एमिड इज ऑल्सो बिटवीन. तो वो देखना चाहती कि कैसे लोगों की के भीड़ के बीच में, है ना, सब एक दूसरे सब बड़े बिजी हैं और उनकी लाइफ कैसे चल रही है. ओके, सो हॉन्ट मीन्स रेगुलर मीटिंग प्लेस. ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग एक साथ देखने को मिलेंगे, उनकी लाइफ कैसे चल रही है. लाइक हियर द पिक्चर इज गिवन. ओके, द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, यानी कि उस दिन जो शहर है वो मेरी मंजिल होती. मैं पूरे शहर में घूमकर देखती कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे अपना दिनचर्या चलाते हैं. ओके, फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर. पहले क्या करती वो, एक बिजी कॉर्नर पे खड़े हो जाती. मियरली लुकिंग एट पीपल. ठीक है, एक बिजी कॉर्नर पे खड़े हो जाती और जस्ट सिर्फ लोगों को देखती रहती. ठीक है, ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डेली लाइफ. ठीक है, तो लोगों को मैं चुपचाप से खड़े होकर वहां पर देखती और उनके डेली लाइफ के बारे में, उनकी उनकी रूटीन्स के बारे में मैं देखती और समझती कि उनके जीवन में क्या चल रहा है. आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी. ठीक है, मैं खुशियों को देखती हूँ और मैं खुश हूँ. ठीक है, आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन. मैं सीरियस डिटर्मिनेशन भी देखती हूँ लोगों का. डिटर्मिनेशन मतलब क्या, कुछ पाने की जो इच्छा होती है ना लोगों के अंदर, तो मैं वो भी चीज़ों को देखती हूँ कि एक सीरियस जो डिटर्मिनेशन है वो कैसा होता है. एंड आई एम प्राउड, और मैं इस बात के लिए बहुत गर्व करती हूँ कि मैं लोगों की स्माइल, उनकी खुशी और उनके सीरियस डिटर्मिनेशन को देख सकती हूँ. आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट. सो व्हाट शी इज सेइंग कि मैं लोगों की सफरिंग्स को, यानी कि लोगों के कष्ट को भी मैं देख सकती हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं कंपैशनेट हूँ, यानी कि मैं दयालु हूँ. कंपैशनेट का मतलब होता है, इंग्लिश में आप बोले तो जेनरस और हिंदी में बोले तो दयालु. ओके, एट मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन. ठीक है, क्या बोल रही है, और आधी रात में फिर क्या होता, वो तीसरा दिन खत्म हो जाता और मेरा जो परमानेंट नाइट है मेरी, वो फिर से मेरे ऊपर लागू हो जाती. ठीक है, naturally in those 3 short days I should not have seen all I wanted to see. तो क्या बोल रही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना. नेचुरली को हम ऑब्वियसली भी बोलते हैं इंग्लिश में. तो नेचुरली शी इज सेइंग कि इन 3 छोटे दिनों में मैं वो सारी चीजें तो नहीं देख पाती जितना मैं देखना चाहती थी, है ना, वो पूरी चीजें मैं नहीं देख पाती. ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन. और ये मुझे तभी पता चलता है जब ये डार्कनेस मेरे ऊपर हावी हो जाती है ना, तभी फिर मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी सारी चीजें जो है वो अनदेखी मैंने छोड़ दी है. अंडरस्टैंड, देखो ये सिर्फ एक कहानी नहीं चल रही है या एक राइटर का इमेजिनेशन नहीं चल रहा है ना. एक जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होता वो कैसे, मतलब उसके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, है ना, और वो कैसे चीज़ों को अपने एक डिजायरेबल व्यू से देखता है वो वर्ल्ड को, है ना. ये हम देख रहे हैं कि वो उसकी कितनी इच्छाएं रहती है चीज़ों को जानने की, समझने की, बट वो उतना नहीं कर पाता है. राइट, आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी. अब ना यहाँ पर से राइटर जो है हमारे लिए एक सजेशन देती है कि मैं तो अंधी हूँ, ठीक है, लेकिन, ठीक है, बट
अब देखो आजकल के समय में ना हम लोग किसी को भी ब्लाइंड या डेफ ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। पहले के समय में हम बोलते थे, जैसे हम पहले के समय में विकलांग बोलते थे, है ना, जो भी जिनकी भी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती थी उनको हम विकलांग बोलते थे। बट आजकल वो वर्ड जो है विकलांग वो दिव्यांग से रिप्लेस हो गया है ना। दिव्यांग मतलब कि देर इज समथिंग स्पेशल इन देयर बॉडी, ठीक है। और सही बात भी तो है ना, आई हैव टोल्ड यू कि देर आर मेनी दिव्यांग पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, है ना, जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने अचीव की है। हमने लुइस ब्रेल को भी देखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप लोग जानते नहीं, लुइस ब्रेल इज अ पर्सन जो 13 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और फिर उन्होंने अंधे लोगों के लिए, है ना, विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए स्क्रिप्ट बनाई थी, ताकि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो भी पढ़ाई लिखाई कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके, ठीक है। एंड देर आर मेनी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, बहुत सारे हाईली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी है हमारे इंडिया में जो कि विजुअली चैलेंज्ड भी है और फिजिकली चैलेंज्ड भी है, बट येस दे हैव डन देयर बेस्ट, है ना। विजुअली चैलेंज्ड ऑफिसर्स भी है जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाई लिखाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में भी है, ओके। सो दैट इज टू बी सेड कि हाँ, यस आई वाज सेइंग कि ब्लाइंड को ब्लाइंड नहीं बोलिए, डेफ को डेफ मत बोलिए, आप बोल सकते हैं ब्लाइंड को कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है। आप डेफ को बोल सकते हैं ऑडिबली चैलेंज्ड पर्सन, या ठीक है, इस तरीके से हम उनको बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग एकदम लेमैन लैंग्वेज में उनको ब्लाइंड या डेफ बोलने की जगह में, है ना। या तो फिर हम स्पेशली एबल्ड बोल सकते हैं, है ना। हिंदी में हमने जो दिव्यांग विकलांग है उस वर्ड को रिप्लेस किया दिव्यांग से, और इंग्लिश में जो हम डिसेबल्ड पर्सन बोलते थे उसको हमने स्पेशली एबल्ड वर्ड से रिप्लेस किया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग भी इतने काइंड, यू आर काइंड इनफ टू एड्रेस दोज पीपल इन अ रेस्पेक्टफुल वे, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर हु आई एम ब्लाइंड, शी इज विजुअली चैलेंज एंड शी इज गिविंग वन हिंट, है ना। यहाँ कहना चाहिए वो हमें एक सलाह दे रही है, जो किनको जो देख सकते हैं उनको क्या सलाह दे रही है, यूज योर आईज एज इफ टुमारो वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, ठीक है। ऐसे चीजों को देखो जैसे कि ऐसा लगे कि कल आपका जो है वो सारा अंधेरा हो जाएगा, कल आप नहीं देख सकेंगे, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और इसी तरीके से आप हर दिन अपने दूसरे बाकी के भी सारे सेंसेस को उस तरीके से यूज करिए और उनको उनसे जो है आप फील करिए, आप, है ना, जो जो आपके सेंसेस है सारे सेंसेस को फील करिए। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, ठीक है, आवाज की जो म्यूजिक है उसको सुनिए, समझिए, बर्ड के सॉन्ग को सुनिए, ठीक है। द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, स्ट्रेन्स का मतलब होता है ट्यून, ठीक है, धुन। तो ऑर्केस्ट्रा की माइटी यानी कि एकदम कहना चाहिए कि ग्रेट, है ना, ग्रेट धुन को उसकी सुनिए, ऑर्केस्ट्रा की यानी कि सॉन्ग की, म्यूजिक की। एज इफ यू वुड बी स्ट्राइक इन डेफ टुमारो, ऐसे सुनिए जैसे कि लगे कि कल आप बहरे होने वाले हैं, है ना। टच ईच ऑब्जेक्ट्स एज इफ टुमारो योर टैक्टिकल सेंस वुड फेल, टैक्टिकल सेंस होते हैं आपके द सेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है। आप स्किन से जो फील करते हो ना वो टैक्टिकल सेंस होते हैं, ठीक है। सो व्हाट शी इज सेइंग कि चीजों को ऐसे छूकर देखो जैसे कि कल आपके जो टैक्टिकल सेंस है वो काम करना ही शायद बंद कर दिया, फेल हो जाए, ठीक है। आपको उतने गहराई से अपने सेंस ऑर्गन्स को फील करना है, शी इज सेइंग, क्यों, क्योंकि उनको वो कीमत पता है, क्योंकि उनके पास नहीं है, अंडरस्टैंड, बट हमारे पास है। तो हमको अपने 5 सेंसेस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए, हमको गॉड को ग्रेटफुल होना चाहिए, गॉड से को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास सारे सेंसेस हमारे सलामत हैं, अंडरस्टैंड। नाउ फर्दर शी सेज कि स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ relish each morsel as if tomorrow you would never smell and taste again, ठीक है। क्या बोल रही है कि इस तरीके से आप फ्लावर्स की खुशबू को सूंघिए और इस तरीके से आप चीज़ों को एकदम मतलब प्लेजर के साथ में टेस्ट कीजिए, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ईच मॉसल का मतलब होता है हर एक बाइट आपके खाने की, है ना, हर एक कौर खाने की, उसको इस तरीके से आप प्लेजर के साथ में टेस्ट करिए जैसे कि आप कल ये सारी चीज़ों को टेस्ट या स्मेल नहीं कर पाएंगे। मेक
द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, यानी कि अपने हर सेंस को पूरा फुलेस्ट यूज करिए, ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर, ठीक है, यानी कि फेसेट्स मतलब होता है हर तरीके से, है ना, हर फेस में, हर तरीके से इन सेंस के ग्लोरी को, यानी इनकी जो इनके होने की जो खूबसूरती है उसको, उसके प्लेजर को, उसकी खुशी को महसूस कीजिए, है ना, एंड द ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वर्ल्ड जो आपके सामने पूरी अपनी खूबसूरती को बिखेर के रखा हुआ है ना, जो मदर नेचर ने अपनी पूरी ब्यूटी को आपके सामने रखा हुआ है खोलकर, उसको आपको बिल्कुल एकदम हर तरीके से मीन्स ऑफ कांटेक्ट, यानी उसको देखकर खुश होइए, वहां से स्मेल लेकर खुश होइए, ठीक है, अगर आप टेस्ट कर सकते हैं तो टेस्ट करके खुश होइए, टच कर सकते हैं तो टच करके फील करके खुश होइए, ठीक है, यानी मदर नेचर ने आपको जो सारी चीजें इन ऑर्गन से आपको फील करने के लिए दिया है, वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए, बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। क्या बोल रही हैं कि लेकिन मैं ये बात तो कहना चाहूंगी कि सारे सेंसेस एक तरफ और देखने की जो खुशी है वो एक तरफ। अंडरस्टैंड? हु इज द ऑथर ऑफ दिस टेक्स्ट? हेलन किलर, ठीक है, आपको जरूर जानना चाहिए कि हु इज हेलन किलर, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी जितनी इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही आपको इन राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज शी इज़ रियली वेरी एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट ऑथर एंड राइटर, और इनकी जो लाइफ है ना, इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है। हेलन किलर इज़ एन अमेरिकन ऑथर। यहाँ पर मैं देखिए स्पेशली आपको हेलन किलर के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर जिसने लिखा है, शी हरसेल्फ इज़ अ पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटीज़। अंडरस्टैंड? हेलन किलर एक ऐसी राइटर है, एक ऐसी ऑथर है, शी वॉज अ social worker, she was suffragist मतलब she fought for women's voting right, है ना, she was a public speaker, she was an internationally known figure, ठीक है, but why? क्योंकि ना वो खुद एक मतलब उनकी जो दो डिसेबिलिटीज थी, शी वॉज डेफ एंड शी वॉज ब्लाइंड ऑल्सो, वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। अंडरस्टैंड? बट येट शी स्ट्रगल्ड हर होल चाइल्डहुड, और आगे चलकर वो एक मतलब डिसेबल्ड पर्सन्स के राइट के लिए फाइट करने के लिए वो एक एडवोकेट भी बनी। शी बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल ऑथर, ठीक है। तो जब एक बिना देखने वाली लड़की है ना, विजुअली चैलेंज्ड गर्ल एंड एन ऑडिबली चैलेंज्ड वुमन गर्ल, है ना, जो देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, आज जब हम उस पूरा वर्ल्ड उनको जानता है ना, क्यों? क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था, शी वॉज मोटिवेटेड इनफ कि उनको कुछ चेंजेस लाना है वर्ल्ड में, वो उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं बनाई। अंडरस्टैंड? एंड इसी वजह से वो हमें सजेस्ट कर रही है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने सारे सेंसेस को बराबर यूज करना चाहिए और उसकी ग्लोरी को एंजॉय करना चाहिए। अंडरस्टैंड? और उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। व्हाट माई पॉइंट? तो अगर एक ऑथर जिनके बारे में हम आज पढ़कर यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि एक विजुअली चैलेंज्ड वुमन और एंड अ वुमन हु कैन नॉट हियर, जब वो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि दुनिया हमारे बारे में जाने, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें भगवान ने हमें गिफ्ट दी है, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं मैं बुद्धू हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कमी है, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास पूरे 5 सेंसेस सलामत है, और जिनके नहीं है उनके लिए भी मैं बोलूँगी कि बी अ हेलन किलर ऑफ योर लाइफ। दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू। आई होप द चैप्टर मोटिवेट्स यू वेल इनफ, एंड आपको सारी जानकारी इस चैप्टर से मिली है जो मुझे देना चाहिए था। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।